Hello dear learners, good morning everyone. Today we will start a new topic of class 10th mathematics, that is arithmetic progression. The topic is arithmetic progression. Okay. Then first of all, what is arithmetic progression? Arithmetic progression is nothing but it is a pattern of number in which every number is obtained by adding some fixed number in its previous term except first term. Okay. Arithmetic progression is arithmetic progression is pattern, ठीक है, or sequence of numbers in which every terms is obtained by adding some fixed term in its previous term except first term. It means example, that is 2, 4, 6, 8, 10 and so on. 3, 5, 7, 9, 11 and so on. 2 root 3, 5 root 3, 8 root 3 and so on. It means अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका होता है ये सिर्फ एक नंबर का सीक्वेंस, एक नंबर का पैटर्न है जिसमें हर एक नंबर, ठीक है, हर एक नंबर अपने पहले वाले टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करने के बाद मिलता है पहले टर्म को छोड़ के। वही लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन व्हिच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड टर्म इन इट्स प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। पहले टर्म को छोड़ के बाकी किसी को ऐड करना। अगर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको सब कुछ को वैल्यू 5 7 9 11 एंड सो ऑन। आप देख लो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ये दिया हुआ पैटर्न ऑफ नंबर यहाँ पे a is equal to 2 एंड सेकंड टर्म दैट इज a1 is equal to 2, सेकंड टर्म a2 is equal to 4 एंड थर्ड टर्म a3 is equal to 6, फोर्थ टर्म a4 is equal to 8. What you see here, 2 to 4 that is plus 2, 4 to 6 that is plus 2, 6 to 8 that is plus 2 and 8 to 10 that is plus 2 and so on। आगे आपको नंबर्स मिलते रहेंगे। मींस कि हर एक नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज अ कॉमन डिफरेंस विल बी द सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे सेम होगा। ओके, तो अभी जो है हम बात करेंगे क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म की। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज जनरल टर्म बिकॉज़ if we have idea about general term then we can find out the 10th term, 12th term, 15th term, कोई भी term आप निकाल सकते हो। but before going to general term we have a basic knowledge about the first term and the common difference। then in the arithmetic progression we represent the first term by a, okay, and common difference by d. This is the basic equilibrium test. Okay. Now we'll start a formal derivation for the general term of any p. Then first of all, if we try to write the first term of p is first term of an AP is equal to, let us suppose A. Now second term of an AP is equal to A plus D. You can write that is a common difference आपने ऐड किया। थर्ड term
third term of an AP is equal to what? A plus D, that is A plus 2D. Fourth term of an AP is equal to what? A plus 2D and plus D. Third term आपने already add किया, that is you will get A plus 3D. आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं, जब मैंने फर्स्ट टर्म वन की बात की तो सिर्फ एक मिला, मैं ऐसे प्लस करके 0 into D कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं टर्म सेकंड की बात करूँ तो उसका टर्म सेकंड इज इक्वल टू A plus D and term third is equal to A plus 2D and term fourth is equal to A plus 3D। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जब टर्म वन की बात करेंगे ये वन, then the coefficient of D is 1 less than 1, and the term 2 coefficient of D is equal to 1, term 3 then the coefficient of D is equal to 2, and term 4 then the coefficient of D is equal to 3, then we can write here term n is equal to A plus n minus 1 into D. This is the first formula and also known as the general term of an AP. Okay. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ और नहीं, एक नंबर्स का पैटर्न है जिसमें हर एक नंबर अपने पहले वाले नंबर में कुछ एक फिक्स क्वांटिटी ऐड करने के बाद मिलती है, पहले टर्म को छोड़ के। पहला टर्म आप आप से चूज करोगे फिर उसके बाद जो कुछ एक फिक्स नंबर ऐड किया, जैसे 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11 एंड सो ऑन आते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने एक जो है आपको फॉरवर्ड डिवीजन बताया कि अगर आपके पास टर्म 1 इज इक्वल टू आपने a लिखा, ठीक है, टर्म 2 इज इक्वल टू आपने a plus d लिखा एंड द d इज अ कॉमन डिफरेंस, d इज अ कॉमन डिफरेंस, टर्म 3 इज इक्वल टू आपने a plus d यहां से लिया और फिर प्लस d किया तो a plus 2d हो गया, टर्म 4 इज इक्वल टू a plus 3d हो गया एंड सो ऑन। तो आप अगर n पे अप्रोच करोगे तो ये तो सबके सब कॉमन है, a तो आपने यहाँ पे a लिखा प्लस आपने ऑब्जर्व किया कि d का जो कोफिशिएंट है वो टर्म से एक कम है। अगर टर्म 4 की बात करें तो d का कोफिशिएंट 3 है, टर्म 3 की बात करें तो d का कोफिशिएंट 2 है, टर्म 2 की बात करें तो d का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर टर्म n की बात करें तो d का कोफिशिएंट n-1 होगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल टर्म ऑफ एनएलपी हो गया और इस जनरल टर्म ऑफ एनएलपी फार्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे टोटल जो आपको क्वेश्चंस हैं 3 पैटर्न्स में है। यहाँ पे देखो आपको एक टीएन दिया हुआ है, एक ए है और एक एन है और एक बी है। आपके पास यहाँ पे 4 थिंग्स हैं जिसमें आपको कोई भी 3 दिया होगा एंड फोर्थ को आपको ऑप्टेट मतलब फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, टीएन इक्वल टू a plus n minus 1 into d, दिस इज द बेसिक फार्मूला एंड दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एनएलपी। आपको यहाँ पे या तो ये दिया होगा, डी दिया होगा, ए दिया होगा, टीएन निकालना होगा या फिर टीएन दे रखा होगा, ए दे रखा होगा, डी दे रखा होगा और एमक्यू निकालना होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है जो मेरा अरिथमेटिक क्वेश्चन में सेकंड लेसन आएगा मतलब सेकंड लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को डील करेंगे। बट अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड ने पूछ रखा है हम उन क्वेश्चंस के अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास जो है फॉर्मूला मिला, हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे साइड में लिखते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे साइड में, फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। आपके पास ये फॉर्मूला है where a is equal to first term, d is equal to common difference and n is equal to number of term and Tn is equal to nth term। ओके, अभी हम क्वेश्चन हम करते हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है सीबीएसई बोर्ड ने पूछ रखा है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द 25th term of an AP and the given AP is -5 by 2 0 and 5 by 3। आपको इस AP में क्या करना है, 25th term को फाइंड आउट करना है और आपके पास जो AP दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड आउट T25। आपको फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू -5 एंड आल्सो d इज इक्वल टू व्हाट, d का मतलब ये कॉमन डिफरेंस, तो आप
a2 माइनस a1 कर लो, मतलब कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर सकते हो, या फिर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर सकते हो, तो कुछ भी निकाल सकते हो, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो आप डी की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर लो जो आपको इजी लगे। आप 5/2 माइनस 0 कर लो, दैट इज 5/2 माइनस 0, मतलब कि 5/2 आपको मिला एपी का कॉमन डिफरेंस ये और ए की वैल्यू ये, और यहाँ पे n की वैल्यू आपको 25 दे रखा है, n इज इक्वल टू 25 हमने निकाला है। तो आपको पता है t n इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, दिस इज द फॉर्मूला, and put here the value t25 is equal to a and a is equal to minus 5 plus 25 minus 1, 25 minus 1, and the value of d is what, 5/2, 5/2. Then t25 is equal to minus 5 plus 24 into 5/2, 212. Then t25 is equal to minus 5 plus 12 5 is 60, and your answer is t25 is equal to 55। मीन्स कि आपको यहाँ पे जो टर्म 25 मिलेगा इस पर्टिकुलर एपी का, जो 25th टर्म्स होगा, ठीक है, वो 55 आएगा आपका आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ओके, this is your answer. Now, in this particular question, which term of the AP 5, 9, 13, 17, 81, कौन सा टर्म 81 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई ने पूछा हुआ है, सीबीएसई 2005, which term of this particular AP is 81। अब यहाँ पे आपको let nth term of this AP will be 81। आपने सपोज किया कि जो nth टर्म होगा वो 81 होगा, दैट इज आपने क्या सपोज किया, tn is equal to 81 आपने सपोज कर लिया। ओके, अभी आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखी है, a is equal to 5, and if you want to find the value of d, that is a2 minus a1 कर लो, 9 minus 5 it means 4, 9 minus 5 it means 4। अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या है, tn is equal to a plus n minus 1 into d। आपने tn की वैल्यू कैसे पूछ लिया है, 81। ओके, a की वैल्यू क्या है, 5 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है -1, एंड d की वैल्यू व्हाट, 4। अभी 5 को इधर करेंगे तो 81 minus 5 n minus 1 into 4। ओके, 81 minus 5 आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 76, n minus 1 into 4। आपको यहाँ पे n minus 1 is equal to 76/4 मिलेगा, n minus 1 is equal to 19। ओके, अभी यहाँ पे n is equal to 19 plus 1, that is n is equal to 20। मीन्स ये कि इस पर्टिकुलर गिवन एपी का जो 20th टर्म होगा, ठीक है, जो t20 होगा वो आपका 81 आएगा। मतलब इस पर्टिकुलर एपी का जो 20वां टर्म होगा, 20वां टर्म क्या होगा, 20 होगा, 20वां टर्म क्या होगा, 81 होगा। ओके, उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया। आप इसे एक बार राइट डाउन करो, फिर मैं इधर से एक नया क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन को करेंगे, जो कि 2017 में पूछा हुआ है। मैंने आपको बता रखा है कि पहले हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डील करेंगे, और उसके बाद जो है हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे अप्रोच करेंगे और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन दे रखा है आपका
the 7 times, question is what? If 7 times 7 times of the seventh term, if 7 times of the seventh term of an AP is equal to the 11 times of equal to the 11 times of the 11th term, then what will be its 18th term? Then what will be its 18th term? Its 18th term. And this question asked in CBSE 2017. Okay, ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2017 में पूछा था। प्रीवियस क्वेश्चन जितने के हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिए और थोड़ा सा इस पे आप जो है अपने थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करिए, फिर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ओके, now what will be given here? As we know that the seventh term t7 is equal to what? A plus 60, and also t11 is equal to what? A plus 10d। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? tn is equal to a plus n minus 1 into d। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो यहाँ पे जब मैं बोला कि सेवेंथ टर्म दैट इज t7 is equal to a plus 60 and the 11th term that is a plus 11 minus 1 that is 10d। अब according to question, what we given is 7 times of, that is 7 times of t7 is equal to 11 times of t11. It means 7 times of a plus 60 and here 11 times of a plus 10d. Okay, 7a plus 42d is equal to 11a plus 110d। एक साइड में लेके चले आओ तो 7 इसको इधर भेज देते हैं, ऐसे करते हैं 11a plus 110d minus 7a minus 42d is equal to 0, and 11 minus 7 that is 4a plus 110 minus 42d। तो यहाँ से आपको मिल सकता है क्या? आपने डी कॉमन कर लो और 110 माइनस 42 लिख लो इज इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, तो 4a प्लस यहाँ से आपको 10 माइनस 2 दैट इज 8 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे 11 की जगह आपको 10 है, 10 माइनस 4 दैट इज 6 मिलेगा यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0। अगर आप 4 कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। 4 into a plus 17 is equal to 0, and अगर यहाँ से देखो तो आपको 4 into ये जो लिखा हुआ है a plus 17d nothing but this is 18th term। okay, because 18th term पूछ रहा है and 18th term you know very well by this formula t18 is equal to what? a plus 18 minus 1 into b। by this formula you will write here what? t18 is equal to a plus 17d। आपको ये मिलेगा, तो यहाँ से आपने a plus 17d को t18 लिखा, and you know very well whenever you have two numbers and the multiplication of these two numbers will be 0, a into b is equal to 0 implies that
या तो a इक्वल टू 0 होगा, या फिर b इक्वल टू 0 होगा, या फिर a एंड b बोथ 0। तो यहां से 4 तो 0 होने से रहा, तो बचा क्या, t18 is equal to 0 and this is the required answer। यहाँ लिखना since 4 is not equal to 0 therefore t18 is equal to 0। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा अरिथमेटिक क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके बाद हम एनसीईआरटी में आएंगे और आगे सग्रवाल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो फिर से पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ गुड डे। ओके, बाय एवरीवन।